Personal requirement. In this topic, we will cover the manpower requirement, their approval, and trainings. So let us first look at the flow chart, how maintenance personnels are ranked as per the responsibilities. In a maintenance organization, the topmost person responsible for running the organization is accountable manager. Under him, there are 4 managers: line maintenance manager, base maintenance manager, workshop manager, quality manager. These 4 managers will directly report to accountable manager related to any problems. Under line maintenance manager, we have a AME and technicians. Under base maintenance manager, again we have a AMEs and technicians. These AMEs, if they face any problem, they will bring it to the notice of their respective managers, and these managers will directly report to accountable manager regarding solutions. Under workshop manager, we have a shop in charge, workshop engineers, and technicians. And under quality manager, we have a quality audit staff. So this is just a basic idea to let you know the flowchart of a maintenance organization. The actual one may differ slightly, but the basic structure remains same. As I said, the most superior person in the organization is accountable manager. So he has 3 main responsibilities to run an organization. Number 1, he should ensure resources are available. Means whatever tools, equipment, or any other thing related to maintenance organization, these all things will be fulfilled by a accountable manager. Number 2, he will make and promote safeties and quality policies. Number 3, he should have a basic understanding of CER 145. And remember one key point: accountable manager can be an accountable manager of more than one organization at a time. Remember this keyword. So let us look in the book now. Organization will appoint an accountable manager. Remember this point, it's important. And he will perform the 3 duties which we have just discussed. Do read it once. In this personal requirement, we'll study the section A point and AMC at a time. So let us move to the page number 21 and look at the AMC of point A. Here it says accountable manager normally means CEO. I hope आपको CEO पता होगा. And remember this, questions आते हैं यहाँ से. He can be accountable manager of more than one organization. और एक important चीज़ याद रखना, accountable manager को technical matters पे knowledge होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका काम है financial support provide करना. Okay, यहाँ पे एक थोड़ा सा twist है. If any organization is having CEO and accountable manager as a different person, तो यहाँ पे कंपनी को एक प्रोसीजर के थ्रू DGCA को शो करना होगा कि जब भी फंडिंग एलोकेशन का रिक्वायरमेंट आएगा तो अकाउंटेबल मैनेजर विल हैव अ डायरेक्ट एक्सेस विद द CEO. रिमेंबर दिस पॉइंट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट में ही आता है. ओके, कम बैक टू द पेज नंबर 19 अगेन. पॉइंट नंबर बी, ऑर्गेनाइजेशन नॉमिनेट करता है पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन जिनका काम है कि वो इंश्योर करे ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कंप्लाई करे सारे रिक्वायरमेंट जो कि 145 में मेंशन्ड है. पर्सन ग्रुप ऑफ पर्सन का मतलब है यहाँ पे मैनेजर्स. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, अकाउंटेबल मैनेजर अपॉइंट होता है एंड द रेस्ट अदर मैनेजर्स आर नॉमिनेटेड. डिफरेंस याद रखना. अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन नॉमिनेट कर रहा है मैनेजर्स को, दे विल रिप्रेजेंट अ मेंटेनेंस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर. ये एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट रिप्रेजेंट करते हैं. एंड दीज पर्सन्स आर अप्रूव्ड बाय DGCA. And for that, organization will fill up the name of the managers and their post and send for the approval on CA Form 4. एक बहुत important चीज़ याद रखना, managers are approved by DGCA, but the accountable manager is the only manager which is accepted by DGCA. तो CA Form 4 में accountable manager का नाम नहीं जाता है. Remember this point, important. अब मैनेजर बनने की क्वालिफिकेशन क्या होगी? उनके पास नॉलेज, बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस होना चाहिए एयरक्राफ्ट और कंपोनेंट मेंटेनेंस का. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उनको कंप्लीट वर्किंग नॉलेज होना चाहिए CR 145 का, क्योंकि उनका काम ही यही है कि इंश्योर करना कि 145 के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन रन करें. ओके, लेट्स गो टू पेज नंबर 22 एंड सी द AMC of point number B.
पॉइंट बी, ओके पॉइंट नंबर 1, नोटेड। आपके ऑर्गेनाइजेशन के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा whether you will have an individual person for manager post or have a single person with a multiple manager post. Point number 2, we already know all the managers will directly report to accountable manager. एक important point है यहाँ पे, small organization, हमने ऑलरेडी पढ़ा था लास्ट वीडियो लेक्चर में स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेबल मैनेजर कैन ऑल्सो बी लाइन मेंटेनेंस मैनेजर और वर्कशॉप मैनेजर। क्वेश्चन आ सकते हैं, मार्केट इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स हैव अ लुक व्हाट आर द एक्चुअल ड्यूटीज ऑफ दिस मैनेजर्स। 1, बेस मेंटेनेंस मैनेजर, हैंगर में जितने भी काम हो रहे हैं एज पर स्टैंडर्ड परफॉर्म होना चाहिए, ये लुक ओवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बीएमएम की होती है। प्लस क्वालिटी डिपार्टमेंट ने कोई ऑडिट किया है एंड दे हैव फाउंड सम नॉन कॉम्प्लायंस, तो उसका करेक्टिव एक्शन लेने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीएमएम की होगी। एलएमएम सेम चीज़ है, लाइन में जितने भी डिफेक्ट रेक्टिफाई होंगे वो एज पर स्टैंडर्ड होने चाहिए और जितने भी नॉन कॉम्प्लायंस होंगे उसका करेक्टिव एक्शन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एलएमएम की होगी। वर्कशॉप मैनेजर, जितने भी कंपोनेंट के ऊपर रिपेयर परफॉर्म होंगे वो एज पर स्टैंडर्ड होने चाहिए और अगर वर्कशॉप में कोई भी नॉन कॉम्प्लायंस है तो उसका करेक्टिव एक्शन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? वर्कशॉप मैनेजर। क्वालिटी मैनेजर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 145 सेक्शन है 30 पॉइंट नंबर सी। चलो देखते हैं इसमें क्या दिया है। सो लेट्स टर्न टू द पेज नंबर 19। इट सेज अकाउंटेबल मैनेजर विल अपॉइंट अ पर्सन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो मॉनिटर करे ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी को और डायरेक्टली फीडबैक दे अकाउंटेबल मैनेजर को कि ऑर्गेनाइजेशन की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो रही है, डिग्रेड हो रही है। This person is nothing but a quality manager. So now we know the duties and responsibility of the basic 4 manager as per CR 145. Point number 7 says जरूरी नहीं है कि आपके कंपनी में सिर्फ यही 4 बेसिक मैनेजर हो। If your organization is large enough and you feel there is an additional requirement of managers, you can appoint that person. बस आपको डीजीसीए को आइडेंटिफाई करके देना है टाइटल, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि वो पर्सन होल्ड करेगा। एग्जाम्पल, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा है कि आपके पास 6 हैंगर है तो आप एक हैंगर का मैनेजर रख सकते हैं जिसका काम क्या रहेगा, ये देखना कि हैंगर 145 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मेंटेन रहे। पॉइंट नंबर 8 सेज आप जितने भी मैनेजर रखो, अकाउंटेबल मैनेजर को सिर्फ 4 बेसिक मैनेजर ही रिपोर्ट कर सकते हैं। नोट, सेम चीज है, सर्टिफाइंग स्टाफ अपने मैनेजर के थ्रू अकाउंटेबल मैनेजर को कुछ भी रिपोर्ट दे सकता है, एनी प्रॉब्लम विच ही इज फेसिंग। एएमसी पॉइंट सी, दिस पॉइंट सेज क्वालिटी मैनेजर का सिर्फ काम ऑडिट करके नॉन कॉम्प्लायंस नहीं देना है, आपको क्या रेमेडियल एक्शन, मतलब आपको ठीक करने के लिए क्या एक्शंस लेना है, ये चीज़ भी क्वालिटी मैनेजर रिपोर्ट करके बताएगा टू अकाउंटेबल मैनेजर एंड टू द डिपार्टमेंट वेयर द नॉन कॉम्प्लायंस हैज बीन ऑब्जर्व्ड। पॉइंट नंबर डी, इट सेज ऑर्गेनाइजेशन के पास मेंटेनेंस मैन आवर प्लान होना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली प्लान, परफॉर्म, सुपरवाइज, इंस्पेक्ट एंड क्वालिटी मॉनिटरिंग कर सके एज पर द अप्रूवल। प्लस ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रोसीजर होनी चाहिए, अगर स्टाफ कम है तो वर्क को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल हाउ मैन आवर इज बीन कैलकुलेटेड और एग्जैक्टली व्हाट इज मैन आवर। A320 check is carried out at every 24 months. Aircraft will be grounded for 14 days and the requirement of man hour is 6000. As per the duty time limitation, एक शिफ्ट नॉर्मली 8 आवर्स की होती है। सो अगर 8 आवर्स की शिफ्ट है फॉर 14 days, so roughly we required 428 man hours per day. Every person is working for 8 hours, so in a shift we roughly required 54%. मतलब अगर 14 days के लिए 54% वर्क करेंगे इन अ 8 आवर शिफ्ट, देन सी चेक कैन बी कंप्लीटेड इन 14 days. अगर मैन पावर को 54 से 60 कर दोगे तो चेक 14 days के पहले भी कंप्लीट हो सकता है, और अगर मैन पावर को हमने डिक्रीज कर दिया तो ये शिफ्ट 14 days से ज़्यादा भी जा सकता है। तो मैन आवर इज़ बेसिकली
How much time an average person required to finish a job? Okay, turn to page 23. Let us look at the AMC of point number D. Organization can have permanent and contract staff for performing the work. Point number 1 says half of the staff should be permanent to maintain the stability of organization. But अगर workload ज़्यादा है तो you can increase the contract staff temporary beyond 50%. Point number 2, it says आपका जितना स्कोप है उसके अकॉर्डिंग ही अपना मैन आवर प्लान प्रिपेयर करना है. रीड इट वंस. पॉइंट नंबर 4 एंड 5 सिंपल है. हैंगर एंड वर्कशॉप से रिलेटेड आपके पास मैन आवर प्लान होना चाहिए. पॉइंट नंबर 6 सेम. क्वालिटी डिपार्टमेंट के पास प्रॉपर मैन आवर होना चाहिए टू परफॉर्म ऑडिट. पॉइंट नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से. ऑर्गेनाइजेशन जो मैन आवर प्लान बनाता है वो प्रॉपर है या उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, उसका रिव्यू ऑर्गेनाइजेशन एवरी 3 मंथ लेगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ CR 145. अगर मैन आवर में सिग्निफिकेंट डेविएशन है तो डिपार्टमेंटल मैनेजर विल रिपोर्ट टू क्वालिटी मैनेजर एंड अकाउंटेबल मैनेजर. बट द क्वेश्चन इज कितना डेविएशन होगा कि हम रिपोर्ट करेंगे. आंसर इज मोर देन 25% शॉर्टफॉल. इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस. ओके, टर्न टू पेज 19 अगेन. पॉइंट नंबर ई. ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मैन पावर है वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए. कॉम्पिटेंट मीन पर्सन इज कैपेबल इनफ टू परफॉर्म हिज ड्यूटी. जब भी ऑर्गेनाइजेशन एक पर्सन का कॉम्पिटेंस चेक करेगी, ही विल इंश्योर दैट द पर्सन इज हैविंग नॉलेज ऑफ ह्यूमन फैक्टर एंड हिज परफॉर्मेंस लिमिटेशंस. बिलो आर द डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर एंड ह्यूमन परफॉर्मेंस. इंपॉर्टेंट है, डू रीड इट. Let us look at the AMC of point number E. Turn to page number 23. Now this is the definition of competence. Competence is a measurable skill जो आपकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को मेजर करता है. जब भी किसी का कॉम्पिटेंस चेक होता है तो एटीट्यूड एंड बिहेवियर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ डिसाइडिंग फैक्टर. ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंस कैसे चेक करता है? आपको एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना पड़ सकता है या फिर अ क्वालिफाइड पर्सन विल टेक अ इंटरव्यू टू चेक योर नॉलेज. आपके बेसिक रिकॉर्ड्स चेक होंगे एंड योर एक्सपीरियंस रिकॉर्ड्स टू. सो ऑर्गेनाइजेशन विल चेक दीज पॉइंट्स टू डिसाइड अ कॉम्पिटेंस ऑफ पर्सन. अब कॉम्पिटेंस चेक होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा आपको कितना अनसुपरवाइज काम देना है या फिर अगर आपकी कॉम्पिटेंस लेवल को इंक्रीज करना है तो कौन सी एडिशनल ट्रेनिंग देनी होगी. Organization will maintain your qualification and competence record. Basic है, just read it once. Rest all just read it once. Now directly come to the point number 2. आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसका मेंटेनेंस प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए. Point number 4. This point says competence assessment किस लेवल पे लेना है और कौन सी ट्रेनिंग इंडिविजुअल को देनी है ये डिसाइड होता है एज पर योर जॉब डिस्क्रिप्शन. सो हियर आर द एग्जांपल्स. कितने टाइप के स्टाफ्स होते हैं एक 145 में? मैनेजर, रीड इट वंस. प्लानर, मेंटेनेंस की प्लानिंग इज डन बाय दिस पर्सन ओनली. डू रीड इट. सुपरवाइजर, वी ऑल नो व्हाट इज सुपरवाइजर. एक यूनिक पॉइंट है यहाँ पे, जो सुपरवाइजर सुपरविजन के साथ मेंटेनेंस कर रहा है, अगर वो कोई ऐसा मेंटेनेंस टास्क परफॉर्म कर रहा है जिसमें उसकी सुपरवाइजिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इफेक्ट हो रहा है, ही विल नॉट परफॉर्म दैट टास्क. Mechanic means technician, just read it. Specialized service staff, we all know painting, welding, NDT, these are performed by the specialized service staff. Support staff, we already have seen a short in CR 66 and in detail we'll look in the later part of CR 145. Certifying staff, we all know what is certifying staff. Quality audit staff, person जो audit करता है. So इतने स्टाफ काम करते हैं 145 में. अब इनका कॉम्पिटेंस कैसे टेस्ट होगा इसके बारे में DGC ने रिक्वायरमेंट दिया है इन GM2 ऑफ पॉइंट नंबर E. जस्ट टर्न टू द पेज 34. इफ यू सी इन द टेबल द लेफ्ट साइड DGC ने दिया है आपको असेसमेंट में क्या क्या पूछना है एंड राइट साइड में जो क्रॉस किया हुआ है दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज एप्लीकेबल फॉर दैट पर्सन ओनली. एग्जाम्पल, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड क्या होता है? यू विल आस्क टू
specialized service staff during your competence assessment, but not to the mechanic because he is not related to that department. Turn to the page number 25 again. AMC 2 point number E. इतने सारे स्टाफ को ह्यूमन फैक्टर की ट्रेनिंग देनी है. बेसिकली सभी आ रहे हैं. Okay, this point is important. Human factor training syllabus is specified in guidance material of 14530E. Now the person recruited from other organization, मतलब contract staff, human factor training shortly after joining. An employed staff should be given within 6 months. Important है, test question है. Okay, point number 2. ह्यूमन फैक्टर ट्रेनिंग देने के दो पर्पस है. फर्स्ट, स्टाफ को ह्यूमन फैक्टर के टर्म्स पे अवेयरनेस एंड नॉलेज देना है, एंड सेकेंड इज टू टेक अ फीडबैक रिलेटेड टू ह्यूमन फैक्टर इशू इन देयर ऑर्गेनाइजेशन. क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, मार्केट इंपॉर्टेंट. नॉर्मली ह्यूमन फैक्टर ट्रेनिंग इज कंडक्टेड एवरी 2 years इन अ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन. अब ये ट्रेनिंग देता कौन है? आइदर ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, या फिर कोई इंडिपेंडेंट ट्रेनर, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम टाई अप करेंगे विच इज़ एक्सेप्टेबल टू DGCA. जस्ट मार्केट इंपॉर्टेंट. ह्यूमन फैक्टर ट्रेनिंग प्रोसीजर MOE में मेंशन होनी चाहिए. जस्ट गो थ्रू इट वंस. ह्यूमन फैक्टर ट्रेनिंग के साथ फ्यूल टैंक सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिकल वायर इंटरकनेक्टिंग सिस्टम ट्रेनिंग. This is also important. So organization will give you these 2 trainings also. Fuel tank safety training. We'll study this further in the last part of this year. Point F. Now personnel जो entity carry out करते हैं on aircraft structure or component, they should be qualified as per the DGCA specified standard or equivalent. We will look it in the AMC. जितने भी specialized task एक person perform करता है, he should be qualified to officially recognized standard. इसका भी डेफिनेशन हम AMC में देखेंगे. Now this point is important. We know entity is performed by a specialized service staff, but a licensed AME of B1 और B3 कैटेगरी एक पर्टिकुलर टाइप का एंटिटी परफॉर्म कर सकता है, which is color contrast dye penetrant test. Rest all test of entity will be performed by a specialized service staff. Okay, turn to page number 25. Let's see the AMC of point F. This point says आपको एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर या फिर कंपोनेंट पे कौन से टाइप का एंटिटी परफॉर्म करना है. इट इज इंस्ट्रक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर इन मेंटेनेंस डेटा. स्पेशलाइज्ड सर्विस स्टाफ वही टाइप का एंटिटी परफॉर्म करेगा विच इज मेंशन इन मेंटेनेंस डेटा. DGCA ने एंटिटी के 3 लेवल के क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई किया है इन ACs 2 of 2017. क्वेश्चंस कम फ्रॉम हियर. द क्वालिफिकेशन फॉर एंटिटी इज डिफाइंड इन एडवाइजरी सर्कुलर 2 of 2017. इंपॉर्टेंट है. पॉइंट 4. एक पर्सन को एंटिटी करने की जो ऑथराइजेशन होती है वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे देगा, उसका प्रोसीजर कहाँ मेंशन्ड है? इन ACs 2 of 2017. मार्केट इंपॉर्टेंट. पॉइंट नंबर 5. पॉइंट 5. DGCA ने एंटिटी के एग्जांपल्स दिए, जस्ट रीड इट वंस. पॉइंट नंबर 6. नाउ DGCA ने एंटिटी के टाइप और उसकी क्वालिफिकेशन ऑलरेडी मेंशन की है, बट इन फ्यूचर न्यू मेथड ऑफ एंटिटी विल श्योरली कम. लाइक वन करेंटली इंट्रोड्यूस इज थर्मोग्राफी एंड शियरोग्राफी, which is not addressed by DGCA in ACs 2 of 2017. These are the examples of thermography, जिसमें थर्मल इमेज के हेल्प से डिफेक्ट को फाइंड आउट करते हैं ऑन स्ट्रक्चर, एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ शियरोग्राफी. So this type of entity are new and DGCA have not set up a qualification for that. तो इसको हम एयरक्राफ्ट पे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? CR says until DGCA establish standard for that, you can carry out with a recommendation of equipment manufacturer, जिसके लिए पर्सन को ट्रेनिंग लेनी होगी एंड एग्जामिनेशन देना होगा to prove the competence to carry out such new method. Point number 8. NDI का एग्जाम्पल है, just read it once. Point 10. सेम चीज रिपीट किया है. जितने भी पर्सन एंटिटी परफॉर्म करेंगे इन 145 ऑर्गेनाइजेशन, दे शुड बी क्वालिफाइड एज पर द स्टैंडर्ड मेंशन इन ACs 2 of 2017. दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. डेफिनेशन ऑफ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड सिंपल है, जस्ट रीड इट वंस. ओके, कम टू द पेज 20 अगेन. पॉइंट G. इट सेज फॉर लाइन मेंटेनेंस यू शुड हैव अ क्वालिफाइड सर्टिफाइंग स्टाफ इन कैटेगरी B1, B2, B3. ये यूनिक है. इन एडिशन उसके साथ आपके पास एक टास्क ट्रेन्ड पर्सन होना चाहिए हु इज क्वालिफाइड एज पर CR 66 टू कैरी आउट
माइनर शेड्यूल लाइन मेंटेनेंस एंड सिंपल डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन। तो समझा? यस, they are talking about CAT AMEs. But these persons cannot replace B1, B2 और B3 certifying staff. मतलब लाइन पे CAT A के साथ B1, B2 और B3 पर्सन भी होने चाहिए, बिकॉज CAT A का स्कोप बहुत लिमिटेड है और अगर कोई मेजर डिफेक्ट आएगा तो उसके लिए B1, B2, B3 ही सर्टिफाई कर सकते हैं। Turn to page number 27. Let's look at the AMC of point G. Now this CAT A holder which is performing minor schedule line maintenance and simple defect rectification, these are up to weekly checks. मतलब उसका लिमिटेशन है कि वो सिर्फ वीकली चेक्स परफॉर्म कर सकता है। अब वीकली चेक्स में क्या क्या चीज़ें होती है, दैट इज बीन मेंशन इन ऑपरेटर्स एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस प्रोग्राम। बट सपोज अगर ऑपरेटर के मेंटेनेंस प्रोग्राम में वीकली चेक के बारे में स्पेसिफाइड नहीं है, then DGC will determine what significant checks will be equivalent to weekly checks. Point 2. Here in CR 145, DGC has specified the list examples what should be contained in minor schedule line maintenance and simple defect rectification. Read it once, आपको आइडिया मिल जाएगा कि minor schedule line maintenance and simple defect rectification में क्या क्या चीज़ें परफॉर्म होती है। In the case of helicopter, ऊपर के जितने भी वीकली चेक्स है उसके अलावा हेलीकॉप्टर में ये सारी चीज़ें भी ऐड होती है एज अ पार्ट ऑफ वीकली चेक्स। जस्ट रीड इट वंस। पॉइंट 3 इम्पॉर्टेंट है, रीड इट केयरफुली। वी ऑलरेडी स्टडीड लाइन पे B1, B2, B3 पर्सन होने चाहिए। ओवर हियर DGC इज सेइंग दैट at every line station you don't need to have B1, B2 and B3. You can keep a CAT A holder, but suppose there is an unscheduled defect which is beyond the scope of CAT A holder, तो आप उसके साथ कैसे डील करोगे? You need to mention in MOE. Point 4. DGCA may also accept at a line station you can have either B1, B2 और B3 certifying staff as appropriate. मतलब आप लाइन पे तीनों में से सिर्फ एक को भी रखोगे तो भी DGCA को एक्सेप्टेबल है। एग्जाम्पल, आपका एक लाइन स्टेशन है जहाँ पे सिर्फ B1 की रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे B2 और B3 से रिलेटेड कोई मेंटेनेंस टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा है, देन DGC कैन एक्सेप्ट इट। बट आपको एक प्रोसीजर DGC को शो करना होगा कि अगर कोई भी अनशेड्यूल्ड डिफेक्ट आ रहा है जिसमें B1 या B2 का रिक्वायरमेंट है, देन हाउ यू विल डील विद इट। इन पॉइंट G, we studied the personal requirement in line maintenance. In point H, let us see the personal requirement for base maintenance. Personnel required for the base DGC have divided into two types. First type is for the complex motor powered aircraft. CAT C qualified person is required as a certifying staff and B1 and B2 as a support staff. Point 1 says B1 B2 support staff ensure करेंगे सारे बेस मेंटेनेंस टास्क कंप्लीट होने चाहिए बिफोर CAT C पर्सन इशू अ CRS. पॉइंट 2 सेज ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट स्टाफ के लिए एक रजिस्टर मेंटेन करेगा। पॉइंट 3 सेम चीज़ रिपीटेड है। CAT C CRS इशू करने से पहले इंश्योर करेगा जितने भी रिक्वायर्ड थे मेंटेनेंस टास्क बाय द कस्टमर इज कंप्लीटेड एंड चेक्ड। सेकेंड टाइप, अदर देन कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट, इसमें DGC ने टू कंडीशंस दी है। आइदर ऑर्गेनाइजेशन कैन गो फॉर B1, B2, B3 एज अ सर्टिफाइंग स्टाफ, मतलब यहाँ पे CAT C की ज़रूरत नहीं है, और दे कैन चूज एज अ CAT C एज अ सर्टिफाइंग स्टाफ एंड B1, B2, B3 एज अ सपोर्ट स्टाफ. Either of the option they can opt for. Now this was the requirement for the hangar maintenance. For the workshop maintenance, we required a component certifying staff which will be qualified as per CR66. अब CR66 में component certifying staff के बारे में कहाँ mention है? Yes, subpart C. Up till now we have studied that the person who is performing maintenance on an aircraft is qualified as per CR66. अब हम तीन केसेस देखेंगे जहाँ पे पर्सन मेंटेनेंस परफॉर्म कर रहा है एंड ही इज नॉट क्वालिफाइड एज पर CR66. फर्स्ट केस, व्हेन योर लाइन मेंटेनेंस फैसिलिटी इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, द सर्टिफाइंग स्टाफ शुड बी क्वालिफाइड एज पर द नेशनल एविएशन रेगुलेशन ऑफ द स्टेट. सेम वे, व्हेन योर बेस मेंटेनेंस फैसिलिटी इज ऑल्सो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, द सर्टिफाइंग स्टाफ शुड बी क्वालिफाइड एज पर द नेशनल एविएशन रेगुलेशन ऑफ द स्टेट. स्टेट का मतलब कंट्री होता है.
मतलब आपका अगर लाइन और बेस फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया है तो सर्टिफाइंग स्टाफ उस कंट्री के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है मार्केट। दिस केस 1 will study in detail in Appendix 4. Let's move on to the second case. Point number 3. Repetitive pre-flight ADs. कुछ ऐसे इंस्पेक्शंस होते हैं जो कि डीजीसी यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है दैट यू कैन गेट इट डन बाय अ कमांडर और अ फ्लाइट इंजीनियर। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन एक लिमिटेड सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन इशू करेगा आफ्टर सफिशिएंट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। एंड द सेकंड केस इज व्हेन योर एयरक्राफ्ट इज ऑपरेटिंग अवे फ्रॉम अ सपोर्टेड लोकेशन। मतलब आपका एयरक्राफ्ट एक ऐसे एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा है जहाँ पे आपकी कोई मेंटेनेंस फैसिलिटी नहीं है। हम वहाँ पे कोई शेड्यूल मेंटेनेंस तो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट बिफोर द एयरक्राफ्ट कैन फ्लाई few inspections need to be done. Now for this, instead of carrying an AME on board, what DGCA says, you can train your commander or flight engineer who will carry out such inspections. For that, again, organization will issue a limited certification authorization after a sufficient practical training. So case number 2 was all about limited certification authorization. Okay, case number 3. Suppose there is a flight from Mumbai to Delhi, and due to some emergency, the aircraft have landed at a remote location in Rajasthan, where no maintenance facilities available on the airport. अब ऐसे केसेस में ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, वन ऑफ सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन इशू करेगा, मतलब एक बार CRS इशू करने का परमिशन। नाउ फॉर दिस दे हैव टू चॉइस। फर्स्ट, वो अपने किसी एम्प्लॉय को भेज सकता है जिसके पास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो, या फिर सेकेंड चॉइस इज he can authorize to any person who is having 5 years of maintenance experience and valid ICAO license. अब जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन वन ऑफ सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन इशू कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन डीजीसी को 7 डेज में इन्फॉर्म करेगा। 7 डेज में कब से? द डे दे हैव इशूड अ ऑथराइजेशन। सो दीज आर द 3 केसेस जहाँ पे पर्सन एज पर CR 66 क्वालिफाइड नहीं है बट स्टिल they are performing maintenance. Important है market. Okay, turn to the page number 29. Let's see the AMC of point J. For the issue of limited certification authorization, commander need either ATPL or CPL license, and for the flight engineer, FEL license is required. Now with regard to training for limited certification authorization, these 3 trainings need to be done. First is airworthiness regulation training, which are rules and regulations. Second is task training, and third is procedure training. Now organization ये training कैसे कराएगा? That should be mentioned in MOE and accepted by DGC. Simple है, just read it once. Normally task जो इस authorization के अंडर perform हो सकता है are minor maintenance and simple checks. These are the below tasks which will be performed by the limited certification authorization holder. Simple है, just read it once. You'll get an idea what are the maintenance tasks which will be performed under this authorization. Okay, second point. Flight engineer का scope limited certification authorization में commander से ज़्यादा होता है, तो in addition to the above point, flight engineer ये सारे task भी perform कर सकता है which will be covered under the authorization. Point 3. Important है definite test question. लिमिटेड सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन की वैलिडिटी कितनी होगी? 12 months. Now look at the AMC of one of certification authorization. This is important definition. Unforeseen cases. मतलब कोई ऐसा कंडीशन आया है जो कि प्रिडिक्टेबल नहीं था। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में ऑथराइजेशन क्वालिटी मैनेजर इशू करता है। सो इन दिस केस ऑल्सो one of certification authorization will be issued by a quality manager. Point number 3. This point says quality manager authorization ऐसे पर्सन को इशू नहीं करेगा जिसका नॉलेज एंड एक्सपीरियंस लेवल उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इंपॉर्टेंट वन, जस्ट रीड इट वंस। नाउ क्वालिटी मैनेजर ऑथराइज कर रहा है ऐसे पर्सन को वन टाइम CRS इशू करने का परमिशन जिसके पास उस एयरक्राफ्ट का टाइप रेटेड ऑथराइजेशन नहीं है। ऐसे केसेस में ऑर्गेनाइजेशन जिस एयरक्राफ्ट पर डैमेज ऑकर हुआ है उसके फ्लाइट क्रू से फुल डिटेल ऑफ डिफेक्ट लेगी, देन दे विल रिक्वेस्ट द क्वालिटी डिपार्टमेंट टू इशू authorization. Now quality department, before they issue the authorization, they will verify these points. First point, जो पर्सन जा रहा है डिफेक्ट रेक्टिफाई करने के लिए उसके पास सारे मेंटेनेंस डिटेल हैंड ओवर किया है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन ने। सेकेंड पॉइंट,
ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोसीजर बनाया है कि नहीं, हाउ टू कोऑर्डिनेट व्हेन द ऑथराइज्ड पर्सन इज परफॉर्मिंग मेंटेनेंस। एंड थर्ड पॉइंट, जो पर्सन वहाँ जा रहा है उसके गाइडेंस के लिए मेंटेनेंस डेटा ऑर्गेनाइजेशन ने हैंड ओवर किया है कि नहीं, विथ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन विल गिव देम वर्कशीट जिसमें स्टेप बाय स्टेप डिफेक्ट को कैसे रेक्टिफाई करना है उसके प्रोसीजर मेंशन होंगे। प्लस जिस पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन ने सिलेक्ट किया है उसके पास सिमिलर टाइप एयरक्राफ्ट का ऑथराइजेशन एटलीस्ट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशन जो वर्कशीट दे रहा है उसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे मेंटेनेंस परफॉर्म करना है उसका डिटेल होता है। सो ऑथराइज्ड पर्सन जो भी टास्क परफॉर्म करेगा हर स्टेप खत्म होने के बाद उसको साइन करना होगा, which will prove that he have completed that step. And once the aircraft will return to the main base, the organization will verify the defect rectified by him. Okay, turn to page number 28. Let's look at the guidance material of limited certification authorization. कमांडर जिसको सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन मिल रहा है लिमिटेड वन, उसके पास एटलीस्ट ATPL या CPL लाइसेंस होना चाहिए। फ्लाइट इंजीनियर के पास FEL लाइसेंस होना चाहिए एज पर शेड्यूल 2 ऑफ एयरक्राफ्ट रूल 1937। ये पॉइंट याद रखना, टेस्ट में पक्का क्वेश्चंस आते हैं। नाउ दिस पर्सन विल आल्सो बी ट्रेन्ड टू इशू MEL, जस्ट मार्क इट। रिमेंबर वी स्टडीड दैट ऑर्गेनाइजेशन विल गिव ट्रेनिंग before the issue of limited certification authorization. So this guidance material says the training should be theoretical and practical. Theoretical training 100 hours की होनी चाहिए which will cover these topics, and the practical training should be of 35 hours which will cover on these topics. ये 35 and 100 hours याद रखना, टेस्ट क्वेश्चन से। Once the training is completed, organization will give them सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ कोर्स। ये सर्टिफिकेट के बेसिस पे क्वालिटी मैनेजर लिमिटेड सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन इशू करेगा।